Hi everyone, I am Anjali. Welcome back to my channel Study Buddies with Angel. I hope you like my videos. I want to know you something interesting. That along with studies, I will also upload motivational videos for you. Are you excited for that? Then please comment me. I think motivation played a crucial role to push you forward when you are tense or depressed about something. So stay tuned with me. Yesterday, we completed our first topic, the French Revolution and the idea of nation. So today, we started the second topic of this chapter, rise of nationalism in Europe, the making of nationalism in Europe. Let's start. If you look at the map of mid 18th century Europe, you will find that there were no nation state as we know them today. अगर आप मिड 18 सेंचुरी का यूरोप का अगर मैप देखते हैं तो आप देखेंगे कि उस टाइम पे एक भी नेशन स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता था, जबकि अगर उसके कंपैरिजन में अगर आज हम देखें तो आज नेशन स्टेट एग्जिस्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल जर्मनी, इटली, फ्रांस, हंगेरी, etc. What we know today as Germany, Italy and Switzerland were divided into kingdoms, duchies and cantons, whose rulers had their autonomous territories. उस टाइम किंगडम, डचेस एंड कैंटन्स हुआ करते थे. मीन्स राजा महाराजा का शासन हुआ करता था, जिनके पास कब्जा किया हुआ खुद का टेरिटरी होता था और वे उस पर राज करते थे. ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वेयर अंडर autocratic monarchies within the territories of which live diverse peoples. ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में मोनार्की था, मीन्स राजा महाराजा का शासन था, जहाँ पे डाइवर्सिटीज ऑफ पीपल रहते थे एक साथ, अंडर अ रूलर और अ किंग. दे डिड नॉट सी देमसेल्व्स एज शेयरिंग अ कलेक्टिव आइडेंटिटी और अ कॉमन कल्चर. वहाँ के लोग एक दूसरे को कलेक्टिव आइडेंटिटी के अंदर नहीं मानते थे. व्हाट इज़ मीन्ड बाय कलेक्टिव आइडेंटिटी? कलेक्टिव आइडेंटिटी उसको बोलते हैं जब एक ग्रुप के पीपल एक दूसरे के से बंधे हुए रहते हैं एक कल्चर और ट्रेडिशन के थ्रू. एक्चुअली में वे रहते तो साथ में थे, बट किसी में एक कलेक्टिव आइडेंटिटी की भावना नहीं थी और अ कॉमन कल्चर्स. Often, they even spoke different languages and belonged to different ethnic groups. वे लोग रहते तो एक ही राजा के अंडर थे, पर सब अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे और अलग अलग एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते थे. एथनिक ग्रुप मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर अ सिमिलर कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन, etc. The Habsburg Empire that ruled over Austria, Hungary, for example, was a patchwork of many different regions and peoples. हैब्सबर्ग एम्पायर का रूल ऑस्ट्रिया, हंगेरी में था. It included the Alpine regions, the Tyrol, Austria and the Sudetenland as well as Bohemia, where the aristocracy were predominantly German speaking. हैब्सबर्ग एम्पायर का रूल ऑस्ट्रिया, हंगेरी में था. इस एरिया के अंडर में अल्पाइन रीजन आता था और अल्पाइन रीजन में जो एरिस्टोक्रेसी रहते थे वे जर्मन बोलते थे. It also included the Italian-speaking provinces of Lombardy and Venetia. लोम्बार्डी और वेनेशिया के लोग इटालियन स्पीकिंग थे. It also included the Italian-speaking provinces of Lombardy and Venetia. लोम्बार्डी और वेनेशिया के लोग इटालियन स्पीकिंग थे. In Hungary, half of the population spoke Magyar, while the other half spoke a variety of dialects. हंगेरी के आधे लोग मैगियर बोलते थे और बाकी के लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे. इन गैलिशिया द एरिस्टोक्रेसी स्पोक पॉलिश. गैलिशिया के एरिस्टोक्रेट्स पॉलिश बोलते थे. बिसाइड्स दीज थ्री डोमिनेंट्स ग्रुप मीन्स एरिस्टोक्रेट्स ऑफ अल्पाइन, एरिस्टोक्रेट्स ऑफ हंगेरी एंड एरिस्टोक्रेट्स ऑफ गैलिशिया. So, beside these three dominant groups, there also lived within the boundaries of the empire a mass of subject peasant peoples, Bohemians and Slovaks to the north, Slovens in Carniola, Kyrgyz to the south, and Romans to the east of Transylvania.
Such differences did not easily promote a sense of political unity. The only tie binding these diverse groups together was a common allegiance to the emperor. How did nationalism and the idea of the nation state emerge? It's not that important. ये लोग बस इतने सारे डाइवर्स ग्रुप बस एक ही वजह से बंधे हुए थे क्योंकि ये एक एम्पायर के अंडर रह रहे थे. बाकी इन लोग का वैसा कुछ कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं था, कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं था. देयर इज़ अ क्वेश्चन एट द एंडिंग ऑफ दिस टॉपिक. How did nationalism and the idea of the nation state emerge? So, we will answer this question after reading the next topic, the aristocracy and the new middle class. So, let's start. Socially and politically, a landed aristocracy was the dominant class of on the continent. So, which continent? The continent is Europe. Aristocracy is a dominant class. Dominant class means a group or a class which have a power is known as dominant class. The members of these class were united by a common way of life that cut across regional divisions. जितने भी एरिस्टोक्रेट्स थे उन लोग का एक कॉमन वे ऑफ लाइफ था. दे ओन्ड स्टेट इन द कंट्री साइड एंड ऑल्सो टाउन हाउसेस. एरिस्टोक्रेट्स थे, उन लोग ने ओन्ड किया था कंट्री साइड में अपना स्टेट और अपना अपना घर बनाया था टाउन्स में. दे स्पोक फ्रेंच फॉर पर्पजेस ऑफ डिप्लोमेसी एंड इन हाई सोसाइटी. वो लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे. देयर फैमिलीज वेयर ऑफन कनेक्टेड बाय द टाइज ऑफ मैरिजेस. उन लोग की फैमिली एक दूसरे से शादी करके बंधी हुई रहती थी. दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वॉज हावेवर न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप्स. आज तक हम लोग जितना भी देखते हैं कि जितने भी अमीर लोग होते हैं एक्चुअली वे बहुत कम पाए जाते हैं. सो एरिस्टोक्रेसी वॉज न्यूमेरिकली इन अ स्मॉल ग्रुप. द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वॉज मेड अप ऑफ द पीजेंट्री. सो एरिस्टोक्रेसी एंड पीजेंट्री. स्ट्रक्चर ऑफ यूरोपियन सोसाइटी दो क्लासेस में बटी हुई थी, एक एरिस्टोक्रेसी और दूसरा पीजेंट्री. एरिस्टोक्रेसी जो कि अमीर थे जिनके पास सारा अधिकार था, और पीजेंट्री जो कि बहुत गरीब थे और उनके पास कोई अधिकार नहीं था. इनको लो क्लास लैंडलेस पीपल भी समझा जाता था. ऐसे समझ लीजिए कि पीजेंट्री एरिस्टोक्रेट्स के गुलाम थे. टू द वेस्ट द बल्क ऑफ द लैंड वॉज फार्म्ड by tenants and small owners, while in Eastern and Central Europe the pattern of landholding was characterized by vast estates which were cultivated by serfs. West of the land. So, let's check the figure number 3, page number 6. Your left side, the Portugal, Spain and Algeria. वहाँ पे फार्मिंग टीनेंट्स करते थे और स्मॉल ओनर्स करते थे. टीनेंट्स मीन्स जिनके पास अपना खुद का लैंड नहीं होता था, वे किसी ओनर से एक लैंड लेते थे जिनके बदले उन्हें टैक्स पे करना पड़ता था. और ईस्टर्न में वहाँ का जो भी लैंड था वो कल्टीवेट करता था एक सर्फ्स. सर्फ्स मीन्स जो लाइफ टाइम के लिए एक लैंड को कल्टीवेट करेगा और उसका टैक्स पे करेगा अपने ओनर को. इन वेस्टर्न and parts of Central Europe, the growth of industrial production and trade meant the growth of towns and the emergence of commercial classes whose existence was based on production for the market. उस टाइम पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था जिसके वजह से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था. इट मीन्स अगर ग्रोथ बढ़ेगा इंडस्ट्रियल का तो जाहिर सी बात है ट्रेड भी बढ़ेगा. तो ट्रेड में का भी ग्रोथ हो रहा था टाउन्स में, और मार्केट्स में भी प्रोडक्शन बढ़ चुका था. इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th century. 18th century means 1750. But in France and parts of German state is occurred only during the 19th century. In its wake, new social group came into being. A working class population and middle classes made up of industrialists, businessmen, professionals. In Central and Eastern Europe, these groups were smaller in number till late 19th century. It was among the educated liberal middle class that ideas of national unity following the abolition of aristocratic privileges gained popularity. It means वहाँ पे एक और क्लास इमर्ज हुआ था.
एक और क्लास था जिसने फ़र्क देखा पीजेंट्री और एरिस्टोक्रेट्स के बीच का, उसको दूर करना चाहा। न्यू मिडिल क्लास में रिवॉल्यूशनरीज थे, मीन्स पढ़े लिखे आदमी थे, जैसे कि इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स एंड एटीसी। ये बोलते थे कि अगर एरिस्टोक्रेट्स के पास इतना सारे राइट्स हैं तो पीजेंट्री के पास क्यों नहीं। बाय दिस दे स्प्रेड अ कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरल नेशनलिज्म, और दे वांटेड टू स्प्रेड द नेशनल यूनिटी, द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी। हियर द टॉपिक एंड्स। We left a question, how did nationalism and the idea of the nation state emerge? जब हम लोगों ने द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास पढ़ा, वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि एरिस्टोक्रेसी और पीजेंट्री के बीच में बहुत सारा डिफरेंसेस था। एरिस्टोक्रेसी के पास वेल्थ था, पीजेंट्री के पास वेल्थ नहीं था। एरिस्टोक्रेसी के पास सारे राइट्स थे, पीजेंट्री के पास राइट्स नहीं थे। और जब न्यू मिडिल क्लास ग्रुप इमर्ज हुआ, उन लोगों ने एरिस्टोक्रेट्स और पीजेंट्री के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस देखे। और वहाँ द मिडिल क्लास ग्रुप में सभी लोग रिवॉल्यूशनरीज थे। रिवॉल्यूशनरीज मीन्स जो न्यू आइडियाज़ लाते हैं। तो उन लोग को ये बात पसंद नहीं आई कि एरिस्टोक्रेसी और पीजेंट्री में इतना डिफरेंसेस क्यों। वो लोग चाहते थे कि एक नेशन स्टेट इमर्ज हो जिसमें सारे लोगों के पास एक जैसा ही राइट्स हो, सब एक साथ रहे और सब एक ही राइट्स एंजॉय कर सकें। सो दिस वॉज द आंसर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।